Good morning, student of class 4th. How are you? I hope you all are well. So, student, take out your rough copy, EVS book, and one pencil. Note down the important things which I am writing on the board. And even if you have any confusion, you can ask me in online doubt session. Is it clear? So, student, today date is 7/8/2020, chapter number 12, and name of the chapter is air, water and weather. So in our previous video I discussed air, what are the properties of the air, and water, and after that we start weather. What is weather? Okay, so let us do little recapitulation what we have done in our previous video, then we will continue with the topic. So student, weather changes from minute to minute, hour to hour, day to day or season to season. Is it clear? So weather, if you see that all the time, अगर आप किसी फॉर एग्जाम्पल आज 7 इज द डेट, आज ही का डेट आप कंसीडर करो, तो यू विल फाइंड दैट वेदर चेंजेस ऑल द टाइम. वेदर हमेशा चेंज होता रहता है. इज इट क्लियर? सो it depends on temperature, moisture in the air, pressure of air, the movement of air or wind. So this thing we have already discussed in our previous video. Is it clear? Now all of you see page number 71. All of you see page number 71 of your book. See now what role play by the sun? What is the role of the sun? See, the most important thing which I already tell you that the weather changes, that it also depends upon the light of the sun. It also depends upon the light of the sun. Now let's see, open page number 71. Heading is given sun and weather. The sun causes changing in the weather condition. So sun and weather. Now see student, we have to write, note down. So now we will study what is the role of the sun in for changing the weather. वेदर की जो हम लोग कहते हैं ना कंटिन्यूअस वेदर, क्या है, हमेशा फिक्स नहीं रहता. टाइम टू टाइम, मिनट टू मिनट, हावर टू हावर, डे टू डे और सीजन टू सीजन ये चेंज होता रहता है. तो व्हाट रोल प्लेड बाय द सन, in that we will study in this topic. Okay, now see, the sun causes changes in the weather condition. The blowing of wind or the formation of the cloud is due to the heat of the sun. Is it clear? The blowing of wind or the formation of the clouds is due to the heat of the sun. See student, what does it means? It means that due to the heat of the sun, what happen? The water evaporates. Is it clear? Due to the heat of the sun, due to the
heat of sun, water evaporates, and this process is known as evaporation. Okay, so due to the heat of the sunlight, what happens when these heat falls on the water bodies which are present on the earth? Water bodies like rivers, ponds, lake, sea, oceans. So when the sunlight fall on these water bodies on the surface of the earth, then what's happened? Due to this heat, we know that the water change in the form of a gas when it is heated, because boiling point of water is 100 degree Celsius. The boiling point of water is 100 degree Celsius. Now see, due to the heat of the sun, the water changes into what? Water changes into gaseous form, and this process is known as evaporation. Okay, now next it is given in the book, it due to this the formation of a clouds and the wind blow. ठीक है, बोल रहा है कि इससे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स होती है एंड द विंड, द ब्लोइंग ऑफ ए विंड, और हवा चलती है. सो सी स्टूडेंट व्हाट हैपन, सी. Yes, it is true, because how the clouds, what are clouds? Clouds are also water. Clouds are also water. Due to the heat of the sun, the water start evaporating. It means it is changing in the form of a gas. It means it is changing in the form of a gas. And when the water change in the form of a gas, it become very light and it rises up in the sky. ठीक है, जब वाटर गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है तो वो बहुत हल्का हो जाता है. ठीक है, और वो राइजेस अप इन द स्काई हो जाता है, ऊपर की ओर जाने लगता है लेस वेट होने के कारण. एंड व्हेन इट कम इन टच विद द कोल्ड एयर, ठीक है, जब वाटर राइज करने लगा ऊपर के लिए, तो वन फिर क्या होगा कि व्हेन द वाटर कम इन द टच ऑफ ए कोल्ड एयर, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वाटर का कंडेंसेशन हो जाएगा. कंडेंसेशन, ठीक है, जब कोल्ड एयर के टच में आएगा तो देन अगेन द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन होगा. इट मींस वाटर वेपर अगेन स्टार्ट चेंजिंग इनटू ए फॉर्म ऑफ ए वाटर. अब नाउ दीज टाइनी drops of water join to form the clouds. These tiny drops of water join to form the clouds. यही होता है. Is it clear? And see, blowing, हवा कैसे चलने लगती है. अब ये जब राइज कर गया, ठीक है, वाटर वेपर गैस फॉर्म में चेंज हो गया, तो इट राइजेस अप इन द स्काई एंड द इट प्लेस इज टेकन बाय द कोल्ड एयर. ठीक है, वो जगह खाली हो गई, एयर ऊपर चली गई, गर्म हवा ऊपर चली गई, तो उसकी जगह किसने ले ली, ठंडी हवा में ले ली. दिस आई विल टीच यू व्हेन आई एक्सप्लेन यू सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज. सो this, I think this point is clear to all of you. The sun causes changes in the weather condition. The blowing of wind or the formation of the cloud is due to the heat of the sun. I think this is very clear to you. The formation of the clouds and blowing of wind, how it take place due to the heat of the sun. One time I more explained you, I revise it what I told you. See student, due to the heat of the sun, when this sunlight falls on the water bodies like rivers, ponds, lakes, sea and ocean, what happens then? These water evaporates. Due to the heat of the sun, the water start changing, because we know that the boiling point of water is 100 degrees Celsius. So due to the sunlight heat, what happens, this water start changing in the form of a vapor, and vapor form of the water is known as what? It means it is changing it with form, it is changing in gas form, and when the water becomes light, it rises up. ठीक है, ये ऊपर की ओर राइज करने लगता है. एंड अगेन
व्हेन इट कम इन टच विद द कोल्ड एयर, देन वाटर क्या हो जाएगा, उसका कंडेंसेशन हो जाएगा, इट मींस द गैस फॉर्म अगेन चेंज इनटू अ वाटर, और ये टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर आपस में ज्वाइन करके क्या बनाते हैं, आपका क्लाउड्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, क्लाउड्स बनाते हैं. So as this much explanation I am given you, I think this is very clear to all of you. Next, the heat from the sun warms the earth during the day. Okay, it warms both land and water. The air on the ground also become hot. Okay, hot air is lighter, so it rises up, and cold air take its place. This is why the wind blows. When the wind blows gently, it is called a bridge. Just the same thing which I explained you. See what's happened when the sunlight falls on the surface of the earth. तो वहां लैंड पार्ट भी है और वाटर बॉडीज भी है. तो हमें ये समझना है स्टूडेंट, जब सन की लाइट अर्थ पे पड़ती है तो वाटर वेपर क्या है, एयर में प्रेजेंट है. वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन द एयर. ओके, सो व्हेन द सनलाइट फॉल्स ऑन द, जो कि मैंने बताया ना कि ड्यू टू द सन हीट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स एंड ब्लोइंग ऑफ द विंड. हवा कैसे चलती है, इसी से चलती है. ठीक है, हाउ, ड्यू टू द हीट ऑफ द सन. सो व्हेन द लाइट ऑफ द सन, सन की लाइट जब पड़ रही है जमीन पे, लैंड पे और वाटर बॉडीज पे, तो विच बिकम heat faster, land or the water bodies, land. ठीक है, जब सनलाइट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पे आती है तो इट हीट बोथ लैंड एंड द वाटर बॉडीज. सो विच हीट, कौन जल्दी गर्म हो जाएगा, लैंड की वाटर, क्या पहले गर्म हो जाता है, लैंड. सो नाउ व्हाट्स हैपन, लैंड के अगल बगल की जो एयर हो जाएगी वो भी बहुत जल्दी हॉट हो जाएगी, बिकॉज व्हेन द सनलाइट फॉल्स ऑन द ग्राउंड एंड द वाटर बॉडीज, लैंड बिकम मोर वार्म. ओके, देन द वाटर, जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाता है, जमीन जल्दी गर्म हो जाती है वाटर से. सो अब क्या होगा, जो लैंड पे जितनी एयर होगी, जो हॉट एयर होगी, इट स्टार्ट राइजिंग अप, वो कहां जाने लगेगी, ऊपर जाने लगेगी. एंड व्हेन द हॉट एयर राइजेस अप, देन व्हाट्स हैपन, दैट प्लेस ऑफ द हॉट एयर इज ऑक्युपाइड बाय, उसको कौन फिल कर देगी, कोल्ड एयर फिल कर देगी. इज इट क्लियर, इसी से विंड चलती है. ठीक है, ऐसे ही हवाएं चलती हैं. आ गया समझ में. नाउ सी, एंड when the wind blows gently it is called it bridge. मतलब जब हवा स्लो चल रही हो, बहुत स्पीड से नहीं, तो उसको क्या कहते हैं, ब्रिज बोलते हैं. ठीक है, व्हाट वी से, when the air is moving gently, मतलब स्लोली जब चल रही है, तो that we say that is a bridge. is it clear? now next देखो, हीटिंग ऑफ लैंड, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, हीटिंग ऑफ लैंड इज फास्टर देन वाटर. This difference in the rate of heating up or cooling down give rise to sea bridge and land bridge. This occurs especially in the coastal region. अब जो कह रहा है, जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया, एक बार फिर से रब करके बता दे रहा हूं, बिकॉज इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है. अब देखो, ठीक है, मैंने बोला when the sunlight, for example this is a sun. ठीक है, ठीक, इज इट क्लियर, फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, यहाँ एक पेड़ बना देते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज लैंड एंड दिस इज वाटर बॉडी, मान लो इसको रिवर ही मान लिया. इज इट क्लियर, फॉर दिस इज लैंड एंड दिस इज अ रिवर. ओके, नाउ सी, व्हेन द सनलाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन व्हाट्स हैपन, तब क्या होता है, इट द लाइट ऑफ द सन heat both the land also and the water body also. But now what is the difference is that land heats faster. जो लैंड है वो जल्दी हीट हो जाएगा, और जो वाटर बॉडी है वो
इट वो टाइम लेगी, ठीक है। सो लैंड हीट जल्दी हो जाता है देन द वाटर बॉडी। ओके, अब देखो चेंजेस कैसे ऑकर्स होती हैं ड्यू टू द हीटिंग एंड कूलिंग। अब लैंड हीट जल्दी होगा तो ये क्या है, कूल भी जल्दी हो जाएगा। इज इट क्लियर? आपने मॉर्निंग में देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल इट इज अ वेरी हॉट डे, हॉट डे में अगर यू टेक आउट योर स्लीपर्स, ठीक है, आप अपने स्लीपर निकाल दो एंड यू जस्ट विदाउट स्लीपर इट इज इम्पॉसिबल टू वॉक ऑन द ग्राउंड। बहुत लगता है पैर जल गया, लगता है ना ऐसा। सो what due to the heat of the sunlight both the land and water bodies warm up, but which warm heating, but difference is that heating of land is faster, land की जो हीटिंग है लैंड जल्दी गर्म हो जाएगा देन द वाटर दिस रिवर वाटर बॉडी। सो अब इसी डिफरेंस का रीजन क्या है, हवाएं चलती हैं, यही डिफरेंस है। लैंड गर्म जल्दी होगा, हीटिंग ऑफ द लैंड इज फास्टर देन द वाटर। इज इट क्लियर? सो इट कूल्स आल्सो फास्टर, ठीक है, ये गर्म जल्दी होता है तो ये कूल भी जल्दी होगा, और ये देर से वार्म होता है लैंड के अपेक्षा तो ये कूल भी थोड़ा लैंड के बाद ही होगा वाटर। आगे ही बात समझ, यही दैट इज द रीजन इसी चेंजेस के कारण सी ब्रिज और लैंड ब्रिज चलती हैं इन द कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन मीन्स द पार्ट ऑफ द लैंड which is in touch of sea water. Coastal region means part of the land which is in touch of sea water. I am reading again, this is very important to understand. Then see, the sun causes changes in the weather condition, the blowing of wind or the formation of cloud is due to the heat of the sun. ये पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि how the clouds are formed and how the wind are blowing, that is due to the heat of the sun. Is it clear? This point is I think very clear to all of you. Next है, the heat from the sun warms the earth during the day, it warms both land and water, so the air on the ground also become hot air is lighter so it rises up, cold air take its place, this is why the wind blows, ठीक है। When the wind blows gently, it is called it bridge. It is called it bridge. Now heating of land is faster than the ground. Heating of land is faster than water. This difference is the rate of heating or cooling down give rise to sea bridge and land bridge. This occurs especially in the coastal region. I think, I hope आपको समझ में आ गया होगा कि सन की हीट की वजह से ही क्लाउड्स भी फॉर्म होते हैं, और जो हवाएं चलती है दैट इज आल्सो ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। जो हवाएं चलती हैं दैट इज आल्सो ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, बिकॉज व्हेन द सनलाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इट मींस इन द डे टाइम, it means in the daytime when the sunlight falls on the land and water bodies, then what happen, the land heat faster, land क्या है, जल्दी हीट, ज्यादा जल्दी हीट हो जाता है फास्टर, किससे, इससे वाटर बॉडी से। सो अब ये हीट जल्दी होता है तो ये कूल भी जल्दी होता है, और ये स्लो हीट होगा तो ये कूल भी लेट होगा। तो द डिफरेंस बिटवीन हीटिंग ऑफ ए लैंड एंड दिस वाटर बॉडी, दिस क्रिएट्स, इसी की वजह से हवाएं चलती हैं। ये जो डिफरेंस इन टेम्परेचर आया, जैसे इट लैंड इट हीटेड फास्टर, सो ये जो डिफरेंस आया इनके टेम्परेचर में, इसकी वजह से ही बेटा हवाएं चलती हैं। क्योंकि देखो लैंड जब तुरंत ज्यादा जल्दी हीट हो जाएगा तो इसके अगल बगल की जो एयर होगी, द एयर अराउंड द लैंड दैट आल्सो बिकम वेरी हॉट, और देन हॉट एयर राइजेस अप, हॉट एयर जब लाइट हो जाती है वेट में तो वो ऊपर जाने लगती है। अब उसके प्लेस कौन ले लेती है, ये कोल्ड एयर ले लेती है, इसी से हवाएं चलती हैं, ठीक है, इसी से हवाएं चलती हैं ड्यू टू द हीट ऑफ द सनलाइट, द विंड ब्लोज ड्यू टू द हीट ऑफ द सनलाइट। जो कि नेक्स्ट अब मैं तुम लोग को बताऊंगा व्हाट इज लैंड ब्रिज
and what is sea bridge? Turn the page, open page number 72. First I make a diagram picture so that you are able to understand. See, sea bridge. See the picture of this on the board, all of you. Now see what happens. First we do one sea bridge. During the day, first we will discuss sea bridge. Okay. During the day, the air above the hot soil becomes hot, but the air above the water remains cool. As the hot air rises up, cool air from the sea takes its place. Thus, a cool breeze blows toward the land during the day. Okay, now see, try to understand what's happened here. See, this is the sun. What this is the land area. What is this? This is a land area and this is a water body. Okay. Now see what is the sea bridge. Now what happens, student? Due to the sunlight, when the sunlight falls on both the land and the water, then what happens? The land, I told you earlier also, the land heat faster than the water. ठीक है, लैंड क्या जल्दी हीट हो जाता है देन द वाटर. सो स्टूडेंट, द एयर विच इज अबव द लैंड, यहीं पे इतनी सी बात समझ लोगे, पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, अब देखो एयर का इतना कॉन्सेप्ट समझ लो, ऑल थिंग्स आर क्लियर. व्हेन द सनलाइट फॉल्स ऑन द लैंड एंड व्हेन इट इज फॉल्स ऑन द वाटर, सो व्हाट हैपन, द लैंड हीट फास्टर देन वाटर. ठीक है, द लैंड हीट फास्टर देन द वाटर. यह मैं लिख भी देता हूं, लैंड हीट फास्टर देन वाटर. ठीक है, लैंड हीट फास्टर देन वाटर. सो द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ हीटिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर, इट काजेस द ब्लोइंग ऑफ द विंड. इसी की वजह से विंड चलती है, हवाएं चलती हैं. ठीक है, अब देखो डिफरेंस कैसे. लैंड है, ये जल्दी हीट हो जा रहा है. इज इट क्लियर? सो द एयर विच इज ऑन द लैंड, लैंड पे जो एयर होगी वो भी हॉट हो जाएगी. यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? द एयर लैंड हीट फास्टर देन वाटर, सो द एयर विच इज अबव द लैंड, लैंड के ऊपर की जो हवा होगी वो भी बहुत हॉट हो जाएगी एंड इट राइजेस अप. ठीक है, अब ये क्या देखो, ये दिखाया मैंने इस एरो से. दिस इज हॉट एयर, हॉट एयर अबव द लैंड. अब ये कहां चली गई? ऊपर चली गई. अब लैंड पे जो हॉट एयर है ये ऊपर चली गई, तो लैंड हीट फास्टर, सो द एयर अबव द लैंड आल्सो बिकम हॉटर एंड इट राइजेस अप. एंड नाउ इन द केस ऑफ ए वाटर, अब यहां देखो वाटर क्या है, उतना जल्दी हीट नहीं होता है, तो वाटर के जो ऊपर की जो एयर होगी वो क्या होगी? कूल होगी. इज इट क्लियर? लैंड हीट फास्टर, so the air above the land rises up
एंड वाटर क्या है, स्लोली हीट होता है। सो इसके ऊपर जो एयर होगी वो क्या होगी, कूल होगी। वो क्या होगी, कूल। तो व्हेन दीज हॉट एयर राइजेस अप, तो इसकी प्लेस किसने ले ली, दिस कूल एयर ने ले ली। इसकी प्लेस किसने ले ली, कूल एयर ने ले ली। इज इट क्लियर। सो सी ब्रिज कब चलती है, डे टाइम में। कब चलती है, डे टाइम में। आ गया समझ में, आ गया आप सबको समझ में। इसलिए जो कूल ब्रिज है वो लैंड की ओर चलती है। कब चलती है ये, डे टाइम में, क्योंकि हॉट एयर ऊपर चली गई और इसकी प्लेस किसने ले ली, कूल एयर ने ले ली। तो कूल एयर जो चल रही है वो कब चल रही है, डे टाइम में चल रही है। और कहां से चल रही है, फ्रॉम द वाटर टू द लैंड। इज इट क्लियर, ऑब्जर्व इट। वन टाइम मोर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि न्यू कॉन्सेप्ट है, सो दैट इट इज वेरी क्लियर टू यू। देखो, सी ब्रिज, ये याद रखना, सी ब्रिज कभी भी कब होती है, डे टाइम में। सबसे इंपॉर्टेंट, सी ब्रिज कब चलती है, डे टाइम में। डे टाइम में चलती है, ठीक है। अब ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, ठीक है, सन के हीट से क्या हुआ, when it falls on the land and when it falls on the water, so what happen here student, the land heat faster, लैंड क्या है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, पानी से जल्दी लैंड गर्म होता है। द लैंड हीट फास्टर देन द वाटर। अब इससे क्या कंडीशन है अराइज हुई, अब जो लैंड है ये बहुत जल्दी हीट हो गया, तो इसके लैंड के ऊपर की जो हवा थी वो भी गर्म हो गई, क्योंकि लैंड जल्दी हीट हो रहा है तो लैंड के अगल बगल की जो हवा थी वो भी बहुत गर्म हो गई। सो व्हाट हैपन, दिस हॉट एयर राइजेस अप इन द स्काई, ये क्या चली गई, ऊपर चली गई। हॉट एयर कहां चली गई, ऊपर चली गई। राइज अप बिकॉज when the hot become, when the air become very hot, so it weight become light, उसकी जो वेट क्या हो गया, एकदम हल्का हो गया। क्योंकि तुम लोग को पता है ना कि एयर में वेट होता है, ये तुम लोग ने चैप्टर एयर में मैम ने आप लोग को बताया होगा, एयर हैज वेट। एक बैलून में हवा डालो, एक बैलून में मत डालो, तो जिसमें हवा होगी वो नीचे होगा। इज इट क्लियर। तो एयर हैज वेट, व्हेन द एयर अबव द लैंड बिकम हॉट इट राइजेस अप, एंड नाउ स्टूडेंट व्हाट हैपेंस, दीज द प्लेस ऑफ द हॉट एयर, हॉट एयर ऊपर चली गई तो इसकी प्लेस किसने ले ली, ये कूल एयर ने ले ली। किसने ले ली, कूल एयर। तो कूल एयर कहां से आ रही है, सी से आ रही है, इसी वाटर बॉडी से, तो इसने इसकी प्लेस ले ली। इसी को क्या कहते हैं, सी ब्रिज कहते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इसी को सी ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। और ये कब होती है, द कूल्स एयर ब्लोज टूवर्ड्स द लैंड ड्यूरिंग द डे। ये किस समय होती है, ये ड्यूरिंग द डे होती है। कूल्स एयर ब्लोज टूवर्ड्स द लैंड, कूल एयर किधर आ रही है, लैंड की ओर आ रही है, क्योंकि लैंड की हॉट एयर कहां चली गई, ऊपर चली गई। एंड व्हेन दिस हैपन, इट हैपन्स इन द डे टाइम, इट हैपन्स इन द डे टाइम। बहुत ही सिंपल और इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत सिंपल और इजी कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज सी ब्रिज, इफ यू वांट टू नोट डाउन एंड द पॉइंट्स व्हिच आई हैव रिटन, सो दैट easily you are able to understand. Sunlight, okay, due to sunlight land and water, sea water both will heat, but land will heat faster, land will heat faster than the this water. So what happened, the air around this land it also become hot. अब ये हॉट एयर जब लाइट हो गई वेट में तो ये कहां, ऊपर राइज चली गई, ठीक है, ये ऊपर चली गई। अब क्या हुआ, दिस स्पेस इज एम्प्टी, अब ये जो खाली स्पेस बची, इस खाली स्पेस को किसने ले लिया, कूल एयर ने इसकी जगह ले ली, ठीक है, इसकी जगह किसने ले ली, कूल एयर ने ले ली। और ये कब हो रहा है, डे टाइम में हो रहा है। डे टाइम में ड्यू टू हीट ऑफ द सन
the hot air rises up and cool air from the sea, it take the place of the hot air. So the blow of a air from the sea to the land, इसीलिए इसको सी ब्रिज बोला गया है. द ब्लो ऑफ एयर फ्रॉम द सी टू द लैंड एंड एट व्हाट टाइम, इन द डे टाइम, इज नोन एज sea bridge, is known as sea bridge. Thank you student.